تلاوت مرزا نکالے متی 7 باب اس کی 7 آیت سے لے کے 11 آیت تک، متی 7 باب اس کی 7 آیت سے لے کے 11 آیت تک میں مسز آصف سے درخواست کروں گا کہ آ کے کلام مقدس میں سے پڑھیں۔ تم کو لیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ تم میں ایسا کون سا آدمی ہے کہ اگر اس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے تو اسے پتھر دے، یا اگر مچھلی مانگے تو اسے سانپ دے؟ بس جب کہ تم بوڑھے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا چاہتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان کا ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا؟ قرآن کے پاک قرآن کے پڑھے اپنے آپ کو تیار کرے آسف ماننے کہ آج شروع کی جانوں گا، آپ سے بات کرو، اسے سننے سمجھ لیں اور اس پر عمل کرنے کا بھی فضل دیجیے۔ اپنے دلوں کی زمین کے لیے دعا کریں کہ یہ نرم رہے، تاکہ یہ کلام کو قبول کرے اور اٹھے اور سو ہو۔ اس نے اپنی جان سلیب پر لے کر ہماری نجات، ہماری شفا اور ہماری رہائی کا انتظام کیا۔ انسان جو آدم کے گناہ کے باعث آپ کے ہاتھ کے نیچے سے نکل گیا، وہ طرح طرح کے گناہوں بیماریوں میں جکڑا ہوا تھا، ابلیس کی عادتوں کو اٹھا رہا تھا، لیکن شکر گزار ہے کہ جب وقت پورا ہوا تو خداوند یسوع نے آسمان کا وہ جلال چھوڑا، موت، قبر، شیطان پر فتح پایا، صلیب پر ابلیس کا بربلا تماشا بنایا، اسے شکست دے کر اپنے لوگوں کو اختیار دیا کہ جاؤ سونپ کو بیچو کچھ اپنے آپ کو خدا آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ آج کے کلام کو روح القدس کی رہنمائی میں بیان کرنے کا فضل ہے۔ پاک ہم کو ذاتی رہے کہ پاک کو ہم سب کا استاد ہے، جو باتیں کلام میں سے پڑھی جائیں، سنی جائیں، سنائی جائیں، ہر ایک زندگی اس کو سمجھیں، عمل کریں، تاکہ جب تک اس دنیا میں کامیاب اور غالب رہ سکے۔ آپ میری زبان الفاظوں اور خیالات کا زبان ہے اور ذمہ کے ساتھ اس کلام کو بیان کرنے کا خدا یسوع مسیح کے نام سے۔ آج ہم خدا کے کلام مقدس میں سے سیکھنے لگے ہیں مانگنے کے تعلق سے۔ دنیا میں کون سا ایسا شخص ہے جو نہیں مانگتا؟ سب مانگتے، کئیوں کو مل جاتا ہے، کئیوں کو نہیں ملتا۔ تو آج ماننے کے تعلق سے جو بات ہم سمجھنے لگے ہیں کہ اگر نہیں ملتا تو اس کی وجہ کیا ہے؟
بے شک آپ ایمان سے مانگتے ہوں گے، شاید روزہ رکھ کے مانگتے ہوں گے یا رو رو کے مانگتے ہوں گے، نہ ملنے اور ملنے کی وجوہات جو ہیں وہ آج ہم خدا کے کلام مقدس میں سے سیکھنے لگے ہیں۔ اور سمجھیے گا آج کے بعد سے اس کلام کو سننے کے بعد یقیناً آپ کے مانگنے کا انداز تبدیل ہو۔ متی کے انجیلی بیان میں سے جو حوالہ بھی آپ کے سامنے پڑھا گیا، آپ اس کا 7 اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، مانگو تو تم کو دیا جائے، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے۔ یہ الفاظ خداوند یسوع مسیح کے ہیں، یہ خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، جو ڈھونڈے گا وہ پائے گا، جو کھٹکھٹائے گا اسے واسطے۔ اور آگے لکھا ہے، کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھلا ہے۔ یوحنا کی انجیل بیان اس کا 16 باب، یوحنا 16 باب اور اس کی آیت 24، یہ لکھا، اب تک تم نے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا، اب تک تم نے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا، مانگو تو پاؤ گے تاکہ تمہاری خوشی پوری ہو۔ اب تک تم نے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا۔ دنیا میں لوگ بے شمار طریقوں سے مانگتے ہیں، کئی سینٹ سے مانگتے ہیں، کئی قبروں مزاروں سے مانگتے ہیں، کئی بتوں سے مانگتے ہیں، کئی سورج سے مانگتے ہیں، کئی چاند ستاروں سے مانگتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں، اب تک تم نے میرے نام سے کچھ نہیں۔ تو مانگنے کا جو حق ہے وہ ہر کسی کے پاس نہیں ہے۔ مانگتا رہے جو مرضی، لیکن ملتا اسی کو ہے جو خداوند یسوع مسیح کا خون خریدا، جو یسوع مسیح کے خون سے دھل کر صاف ہو جاتا ہے، اس کے پاس مانگنے کا حق موجود ہے۔ مگر کیوں؟ افسیوں کا خط کھولے تھے، اس کو کیوں حق ہے؟ جو یسوع مسیح کے خون سے دھل کر صاف ہو جاتا ہے، اس کے پاس یہ حق موجود ہے۔ افسیوں کا خط اس کا 2 باب کی 19 آیت میں لکھا ہے، بس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے، بس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے، بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے لوگ ہو۔ جب کوئی شخص موت سے نکل کر زندگی میں آتا ہے، یعنی وہ توبہ کرتا ہے، اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کرتا ہے، تو خداوند یسوع اپنے خون سے دھو کر اس کو صاف کرتے ہیں، تو پالوس کہتا ہے وہ خدا کے گھرانے کا فرد ہو جاتا ہے، پھر وہ خدا کے گھر کا کہلاتا ہے۔ تو اس کی بات خدا کیوں نہیں سنے؟ اسی سبب سے جب ہم اس کے گھر کے لوگ ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاس یہ حق موجود ہوتا ہے، ہم اس سے مانگیں۔ مانگنے کا حق مسیح کے خون خریدوں کے پاس ہے، کیونکہ پولس کہتا ہے کہ وہ اس کے گھرانے کے لوگ ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہم ایک عورت کی زندگی سے سیکھیں گے 6 باتیں اس کی زندگی میں جس سے اس نے مانگا اس کو ملا۔ تو اس کہانی میں آپ کو بھی اپنی تصویر ضرور نظر آئے گی کہ میں نے بھی اس طرح مانگا تھا لیکن مجھے یہ کیوں نہیں ملا۔ تو آپ اس کی تبدیلی دیکھیں کہ جو کچھ اس نے مانگا اس مانگنے میں اس نے کیا کیا۔ 6 باتیں اس عورت کے تعلق سے ہم سیکھیں گے۔ سیموئیل کی کتاب کھولیں، اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو اس کو ضرور کھولا کریں۔ سیموئیل پہلا باپ اس کا پہلا، سیموئیل پہلا اور اس کا پہلا باپ اور اس کی آیت 27 میں یوں لکھا ہے،
میں نے اس لڑکے کے لیے دعا کی تھی. یہ اس وقت کی کہانی ہے جب اس عورت کی مراد پوری ہو جاتی ہے. اور کیا کہہ رہی ہے؟ میں نے اس لڑکے کے لیے دعا کی تھی اور خداوند نے میری مراد جو میں نے اس سے مانگی پوری کی. آپ کی بھی بہت سی مرادیں ہوں گی. آپ نے بھی کئی سی مرادیں مانگی ہوں گی. زیادہ تر جو عورتیں ہیں وہ لڑکے کی بڑی خواہش کرتی ہیں کہ ہمیں خدا بیٹا دے. یہ عورت کی بھی کہانی اسی طرح. اب مانگنے کے لیے سیکھے کہ اس عورت سے اس نے کہا میں نے اس لڑکے کے لیے دعا کی تھی. اس نے لڑکا مانگا تھا, لڑکے کے لیے دعا کی تھی. آپ میں سے بھی کئی عورتوں نے لڑکوں کے لیے دعا مانگی ہوگی, نہیں پوری ہو گئی ہوگی. اب یہ عورت بھی یہ بات کر رہی ہے میں نے اس لڑکے کے لیے دعا کی تھی اور خداوند نے میری مراد جو میں نے اس سے مانگی اس نے کیا کی, پوری. اب اس عورت کی زندگی میں ہم 6 باتیں سیکھنے لگے. پہلی بات, حنا نے بیٹا مانگ کر پایا. 6 باتیں اس کی سیکھیں. پہلی بات, اس نے لڑکا مانگ کر پایا. لڑکا مانگا تو لڑکا ہی پیدا ہوا, لڑکی نہیں پیدا ہوئی. آپ نے بھی مانگے ہوں گے, آپ کو کیوں نہیں ملا؟ آپ ذرا غور کریں. پہلا سیموئیل پہلا باب اور اس کی 7 آیت. اور چونکہ وہ سال بہ سال ایسا ہی کرتا تھا جب وہ خداوند کے گھر جاتی تھی. شوہر کہیں ہے, عورت کہیں ہے, ماں بیٹا رہے. غور کریں ذرا. حنا اکیلی عبادت پہ نہیں آتی, وہ اپنے شوہر کے ساتھ آتی ہے. آج مرد آ جاتے ہیں, عورتیں نہیں آتی. عورتیں آتی ہیں تو مرد نہیں آتے. ویسے مانگ رہے ہیں خدا سے, یہ بھی مانگ رہی ہے عورت, مگر یہ شخص اپنی بیوی کے ساتھ عبادت پر جاتا ہے. یہ عورت عبادت کو ترجیح دیتی ہے. آج ایماندار بستروں پر پڑے رہتے ہیں. خود آ جائیں گے, بچے گھر چھوڑ آئیں گے, پکنک پہ سارے اکٹھے جائیں گے, شادیوں میں سارے اکٹھے جائیں گے, عبادت پر ان کو لوری دے کے سلا کے آتا ہے. ایماندار ہے, ایماندار. آپ غور کریں کہ یہ عورت اکیلی نہیں آتی, کیونکہ پہلے وقتوں میں سال میں ایک ہی بار عبادت پر جایا جاتا تھا, اس لیے یہ ہر سال عبادت پر جاتی. خروج کی کتاب اس کا 23 باب اور اس کی 25 آیت لکھا ہے تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا. ذرا اس آیت کو ذرا پڑھیں. خروج 23 باب اور اس کی آیت 25. اور تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت. ایک بات نہیں ہے اس میں, ایک بات نہیں ہے. عبادت کو لوگ ترجیح نہیں دیتے. 6 دن بڑے پرفیکٹ رہیں گے, 7ویں دن کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. وہ خدا جس نے آپ کو 6 دن سنبھالا ہے وہ 7ویں دن کی ڈیمانڈ بھی کرتا ہے آپ سے کہ میرے حضور میں آؤ. غور کریں, تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا. آگے لکھا ہے تب, عبادت کرنے کے بعد تب وہ تیری روٹی پر پانی پر کیا دے گا اور تیرے بیچ سے بیماری کو بھی دور کرے گا. اور آگے لکھے تیرے ملک میں نہ تو کسی کے اسقاط ہوگا اور نہ کوئی بھانج رہے گی, اور میں تیری عمر. عبادت نہ کرنے کی وجہ سے لوگ جلدی مر جاتے ہیں, عمل بھی گر جاتے ہیں.
बांझपन में खत्म होता। इबादत बड़ी इंपॉर्टेंट है ईमानदार के लिए। आप पाकिस्तान से बाहर है, खुदा को अव्वल दर्जा दें, इबादत को फोकस करें। 6 दिन खुदा काम करने को कहता है, 7वें दिन की इजाजत नहीं देता। नहमिया के ज़माने में नहमिया ने देखा कि लोग इबादत के दिन कारोबार कर रहे हैं, उसने मारना शुरू कर दिया उनको डांटा, कहा खबरदार खुदा से ज्यादा किसी को इज्जत ना दो। हम एतवार को पिकनिक के प्रोग्राम बनाते हैं, सैर तफरी के प्रोग्राम बनाते हैं, मेहमान नवाजी के प्रोग्राम बनाते हैं, घरों की सफाई के प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन खुदा के लिए हमारे पास कोई प्रोग्राम नहीं। आइए दूसरा तवारीख 30 बाब, जो खुदा की इबादत नहीं करते, खुदा को कुछ नहीं समझते, बाइबल क्या कहती है इसके बारे में? एक वक्त बोने का, एक वक्त काटने का है। दूसरा तवारीख उसका 30 बाब और उसकी 8वीं आयत सुने क्या लिखा है। बस तुम अपने बाप दादा की मानत गर्दनकश ना बनो, बल्कि खुदावंद के ताबे हो जाओ और उसके मकदस में आओ जिसे उसने हमेशा के लिए मुकद्दस किया है, और खुदावंद अपने खुदा की इबादत करो ताकि उसका कहर शदीद तुम पर से टल जाए। जो इबादत नहीं करते वो खुदा के गज़ब के नीचे रहते। याद रखना, दुनिया के सारे कामों के लिए पैसे हैं, सिर्फ इबादत के लिए नहीं। खुदा कहता है मेरे गज़ब के नीचे वो लोग रहते हैं जो इबादत नहीं करते। अल्लाह की जिंदगी की पहली कामयाबी कि वो इबादत को तरजीह देती, और ये जबरदस्ती नहीं है, ये दिखावे के लिए नहीं है, ये खुशी से खुदा के हजूर में जाया करती थी। दूसरी बात, पहला शमूएल 2 बाब, शमूएल पहले बाब की 10 आयत में क्या लिखा है? और वो नहायत दिलगीर थी, सुने जरा, सो वो खुदावन से दुआ करने और ज़ात ज़ात दूसरी इस औरत में खूबी है, ये दुआ गो है, ये दुआ गो है। कितनी माएँ हैं, कितनी औरतें हैं जो बेटा पाने के लिए दुआ करती हैं। दुआ, ये दुआ गो औरत है, और क्या करती है? रोती है, दुआ मांग रही है खुदा से एक बेटे के लिए। आप कितनी दुआ करते हैं? आप कितनी नियत से दुआ करते हैं? आप किस इरादे से दुआ करते हैं? ये दुआ को औरत, हमें चाहिए बेटा, पर बगैर दुआ के ये मुमकिन नहीं है। दुआ को औरत है ये, और दुआ करती कैसे है जरा ये भी देखें। 12 इसमें क्या लिखा? और जब वो खुदावंद के हुजूर दुआ कर रही थी तो एली उसके मुंह को गौर से देख रहा था। ये औरत जो है, जरा गौर करें, और जब वो खुदावंद के जो दुआ कर रही तो एली उसके मुंह को गौर से देख रहा था। वो क्यों? उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी, वो दिल ही दिल में दुआ कर रही थी। आप जरा गौर करें, पूरे दिल से दुआ कर रही है। आपने कभी पूरे दिल से दुआ की है? की होगी आप वक्ती तौर पर। ये औरत पूरे दिल से दुआ कर रही है, इसको एक लड़का चाहिए, बेटा चाहिए इसको। आज बेटे के चक्कर में लड़कियां पैदा हो जाती हैं, 8-10 लड़कियां इकट्ठी कर लेते हैं, लेकिन बेटा नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उसके लिए दुआएं नहीं मांगी। हम दुआ को नहीं है, दुनिया के डॉक्टरों से इलाज करवा ले, जब तक खुदा फजल नहीं करेगा नहीं हासिल कर सकते आप। खुदा का रहम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर भाग उधर भाग, उधर भाग इधर भाग, कुछ नहीं होगा। खुदा को बस दर्जा दे, दुआ मांगे उससे, दुआ के जरिए हासिल करें। और ये पूरे दिल से दुआ करने वाली औरत,
खुदाम यीशु मसीह ने लूका 18 बाब की पहली आयत में कहा, दुआ करते रहो और हिम्मत ना हारो। इसने हिम्मत हारी नहीं, दुआ करती रही, और मकसद इसका एक ही है, एक बेटा चाहिए। कई मजे की बात, मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारे आदमियों को ये बात नहीं पता, शायद कई औरतें भी नहीं जानती कि औरत लड़का पैदा नहीं कर सकती। ये बहुत से आदमियों को पता ही नहीं। औरत के अंदर ये खूबी है ही नहीं, औरत लड़के को जन्म नहीं दे सकती, ये सब लड़के के पास है, आदमी के थ्रू है ये, औरत के अंदर ये ताकत नहीं है। हिस्ट्री साबित करती है, साइंस साबित करती है। मुकद्दसा मरियम ने इसलिए कहा था, ये क्यों करो उसे, औरत के अंदर लड़का पैदा करने की सलाहियत नहीं है, जो मर्द के अंदर है। औरत को मारते हैं, गालियां देते हैं उसको, मनूस कहते हैं उसको कि तू लड़कियां पैदा कर रही है। वो नहीं कर रही, आपके अंदर ये ताकत है, आप पैदा कर सकते हो, औरत नहीं कर सकती। ये कई आदमियों को, औरतों को पता ही नहीं। मुकद्दसा मरियम ने कहा था, ये क्यों कर हो सकता, उसको पता था मैं लड़का पैदा नहीं कर सकता। ये आदमी के थ्रू है, आदमी कर सकते हैं। अब गौर करें, दुआ करते रहना और हिम्मत। यीशु मसीह कहते हैं, मांगो ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। खुदा आपको खुश करना चाहता है, खुदा आपकी खुशी को पूरा करना चाहता है, लेकिन मांगे उससे, मांगे। अब मांगने के लिए एक काम, यिर्मयाह 50 और इसकी 44 आयत में लिखा है, कौन है जो मेरे लिए वक्त करे। अलिशबा और जकरिया दोनों बूढ़े हो गए थे, लेकिन वो दुआ, वो खानदान, वो दुआ को जोड़ा था। आज आदमी कहीं है, औरत कहीं है, वैसे बेटे के चक्कर में है। दोनों इकट्ठे बैठ के दुआ नहीं करती, वैसे लड़के के चक्कर में है। जब तक आप दोनों एक बात पर मुत्फिक नहीं होंगे, दिल से दुआ नहीं करेंगे, ये काम कभी नहीं हो सकता, जो मर्जी कर ले। देखिए, वो दोनों खुदा के हुजूर सब काम और कवानीन पर बेहद चले। खुदा आपको खुश करना चाहता है, खुदा आपकी खुशी पूरी करना चाहता है, लेकिन दुआ के जरिए। मांगे किस तरह? दुआ के जरिए। तीसरी खूबी इस औरत में क्या है? शमूएल पहला बाब, पहला शमूएल पहला बाब और उसकी 15वीं आयत। हन्ना ने जवाब दिया, नहीं है मेरे मालिक, मैं तो गमगीन औरत हूँ। हन्ना जब दुआ कर रही थी तो एली को ऐसे लगा जैसे ये औरत आज नशा करके है। कई औरतें करती हैं नशा, शराब भी पीती है, सिगरेट भी पीती है, फिर वो आजकल एक वो वाइट सा बदली का सा वो भी पीती है, छालिया भी खाती है, पान भी खाती है, गुटखा भी खाती है। ये एली को ऐसे लगा जैसे आज ये औरत कुछ नशा करके आई, वो कुछ ज्यादा कर रही, क्योंकि वो इतनी खुदा में मगन थी कि एली को लग रहा था कि ये ड्रिंकर है। जरा देखिए लिखा क्या इसके बारे में, जरा सुने आप। हन्ना ने जवाब दिया, ऐ मेरे मालिक, मैं तो गमगीन औरत हूँ। आगे क्या लिखा है? मैंने ना तो मैं ना कोई नशा पिया, और खुदावन के आगे अपना दिल उठे। आपको समझ आए? उसने वाज़ेह किया, मैं नशा करने वाली औरत नहीं। जरूरी नहीं कि नशा ये शराब सिगरेट का ही हो, नींद का भी नशा हो, मोबाइल का भी नशा हो,
ٹیلی ویژن کا بھی نشہ ہوتا ہے، مختلف طریقے کا نشہ، جاب کا نشہ ہے، کام 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 کام۔ یہ عورت کی تیسری بات، یہ بدن کی حفاظت کرتی ہے۔ بتائیں ایک چھالیاں کھانے والی عورت، ایک پان کھانے والی، سگریٹ پینے والی، ڈرنک کرنے والی کیسی مدد خدا سے مانگ کر پا سکتی ہے؟ خدا دے گا اس کو کبھی بھی؟ آپ کا بدن ہی پاک نہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے؟ اور لکھا ہے خدا کا روح تم میں۔ اب جس شخص میں خدا کا روح ہے اس کے اندر یہ غلط چیزیں کیسے جا سکتی؟ اس کی آنکھیں فلمیں نہیں دیکھیں گی کیونکہ اس کی آنکھیں پاک ہوں گی، وہ ڈرامے نہیں دیکھیں گی، وہ اپنے بدن کی حفاظت کرے گی، وہ بدن کو پاک رکھے گی۔ حنا واضح کرتی ہے کہ میں کیسی عورت ہوں، کیسی عورت ہوں، ذرا 16 دیکھیں۔ ہاں جی، وہ اپنی لونڈی کو خبیث نہ سمجھنا۔ اس نے بتایا یہ خبیث عورتوں کا کام، میں خبیث نہیں، میں خبیث عورت نہیں۔ بے شمار میں نے عورتوں کو دیکھا عبادت بھی کرتی ہیں اور سائڈ پہ پان رکھا ہوتا ہے، چھالیاں رکھا ہوتا ہے، سگڑ بار بجا کے آئیں گے کئی عورتیں، میں نے کئیوں کو دیکھا، وہ خبیث عورتیں۔ حنا کہتی ہے کہ تو مجھے خبیث عورت، میں خبیث عورت نہیں۔ سو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ لڑکا بھی لینا چاہتی ہیں اور اپنے بدن کو پاک بھی نہیں رکھتے۔ یہ بدن آپ کا پاک ہونا چاہیے، آپ کا دیکھنا، بولنا، سوچنا، خیال کرنا پاک ہونا چاہیے۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ اس ایمان پہ کھڑی ہو جائیں، آپ کے کہنے کے مطابق آپ کو بیٹا تھا، اس قول کے مطابق آئے اور مانگے اس سے، بٹھائیں آدمی کو ساتھ، دونوں مل کے دعا کریں، آسمان کھلتا ہے نہیں کھلتا؟ بس ویسے ہی سرسری اس کو کیا اس کو کیا اس کو کیا، اس سے مسئلہ نہیں ہوتا۔ دانیل پہلے باب اور اس کی 8 آیت میں لکھا ہے، دانیل واضح طور پر منع کرتا ہے میں یہ چیزیں نہیں کھاؤں گا۔ اس کو پتہ ہے ان کے کھانے سے میرا بدن کیا ہو جائے گا۔ کئی آدمی عورتوں کو ہی وہ ہیرو سمجھتی ہیں، آپ دعا کرو، خود نہیں کرتے، اکیلا کبھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ خدا دونوں کے تھرو کام کرنا چاہتا ہے، خدا دونوں کو ایک ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہے۔ دانیل جو ہے وہ اپنے بدن کی حفاظت کرتا ہے کہ میرا بدن ناپاک نہ ہو۔ ہمارا بدن ناپاک ہے یا نہیں؟ دیکھیں ایک ایماندار کو چاہے اتوار ہو سوار ہو تو صبح اٹھنا چاہیے۔ اگر ایک ایماندار صبح نہیں اٹھتا وہ ایماندار نہیں، وہ ایماندار نہیں، وہ راست باز ہے ہی نہیں۔ میکسیمم چھٹی کے دن لوگ 11-12 بجے 1 بجے اٹھتے ہیں اور ان کا ناشتہ دوپہر کو ہوتا ہے، یہ ان کے ایماندار ہونے کا ثبوت۔ ایسے لوگوں میں خدا کبھی کام نہیں کرتا۔ آپ کو ذرا غور کریں، داؤد بادشاہ ہے، کیا کہتا ہے؟ کب اٹھوں گا؟ بولے منہ سے زور سے، صبح سویرے، رات کے ہر پہر میں اٹھتا ہے وہ بادشاہ اسرائیل کا، لیکن اس کو پتا ہے خدا کے بغیر انسان کچھ نہیں۔ جو 9 بجے اٹھے گا وہ عبادت پر کیسے ٹائم پہ آئے گا؟ یاد رکھیں آپ کی زندگی میں اول درجہ کس کا ہونا چاہیے؟ یسایہ 55 باب اور اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، اپنے روپے کو اس چیز پہ خرچ نہیں کرو جو آپ کی جان کو آسودہ نہیں کرے۔ اگر آپ نشہ آور چیزیں کھائیں گے تو کبھی آپ خدا سے نہیں مانگ سکتے، مانگتے رہے وہ آپ کو نہیں دے گا کیونکہ وہ پاک ہے، اور وہ کہتا ہے جس طرح میں پاک ہوں اس طرح تم بھی پاک بنو۔ غلطیوں کا خط اس کا 5 باب اور اس کی 21 آیت میں لکھا ہے، نشہ کرنے والے خدا کی بات چیت میں داخل نہیں ہوں۔ کوئی بھی ہو، وہ کوئی بھی ہو، میں ایک دفعہ مدیر وہ وہاں نرسنگ کا کوئی ہاسٹل ہے کوئی، وہاں مجھے بہت پہلے کسی نے عبادت کے لیے بلایا، تو میں وہاں عبادت کے لیے گیا
तो इबादत ख़त्म हुई, अब उन्होंने हमारे खाने का इंतज़ाम किया। तो जो मकामी खादम था वो कहने लगा मैं ज़रा वॉशरूम से हूँ, मैंने बोला हुआ यहाँ, वो चला गया और वो जाकर वापस आया। तो मैंने कहा मैं हाथ धो लूं, कहने जाए आप। मैं जब गया तो मैंने देखा वो बेसन लाल था। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने ठीक है। मैं वापस आया तो मैंने बोला वो उधर बड़ा रेड हो, मैं पानी छोड़ना भूल गया था। असल में मैं कभी कभी खा लेता हूँ। आप सोचे, एक दफा एक ईमानदार कहने लगा, ये सुने जरा, एक ईमानदार कहने लगा आपको पान खाने से छालिया आपके दांत खराब नहीं होंगे, खा लिया करो कभी। मैं भी खा, ये ईमानदारों का हाल है। और आप ये समझे कि जो इस तरह का ईमानदार है वो है ईमानदार, वो रिया कैरेक्टर है, वो बहुत बड़ा। खुदा बिल्कुल ये चीज पसंद नहीं करता। खुदा कहता है पाक बनो जिस तरह बदन पाक होना चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी आवाज खुदा के कान तक जाए तो आपकी मुराद को पूरी करें। चौथी बात इस औरत में, शमूएल पहला बाब और उसकी आयत 17वीं, जरा गौर करें चौथी इसमें क्या खूबी है। 17 आयत में लिखा है, तब एली ने जवाब दिया तू सलामत जा और इस्राएल का खुदा तेरी मुराद जो तूने उससे मांगी है। इसमें चौथी बात क्या है, कलाम को कबूल करने वाले। इसने कलाम को सुना। एली ने इसके सर पे हाथ नहीं रखा। एली ने इसको यह नहीं कहा अगले साल बेटा होगा, नहीं बोला। उसको पता भी नहीं इसने क्या मांगा है। जरा सुने, मैं फिर पढ़ता हूं। तब एली ने जवाब दिया तू सलामत जा और इस्राएल का खुदा तेरी मुराद जो तूने उससे मांगी है वो पूरी। कलाम को कबूल करने वाली है। आज औरतें कलाम को कबूल ही नहीं करती, नहीं कबूल करती। याकूब का खत पहला उसकी 22 आयत में लिखा है, सिर्फ कलाम को सुनने वाले ना बनो बल्कि उस पर सिर्फ सुनना नहीं चाहिए। हन्ना ने सुना, उसने एली को यह नहीं कहा तूने मेरे सर पे हाथ नहीं रखा, तूने मुझे बोलेगा अगले साल बेटा होगा। कोई ऐसी बात नहीं की। उसने इस कलाम को जो किया गया उसने उसको क्या किया, कबूल किया। और देखें जरा, सलामत जा और इस्राएल का खुदा तेरी मुराद जो तूने उससे मांगी है पूरी। और उसने क्या मांगा था? हाँ, बेटा मांगा। अब इसने क्या किया? अब जरा गौर करें, 18 आयत में क्या लिखा है। अब उसका जवाब सुन लें। उसने कहा तेरी खादमा पर तेरे करम की नजर हो। उसने आगे से ये नहीं कहा कि पास्टर साहब आपने तो सर पे हाथ नहीं रखा, आपने तो दुआ में वो बात ही नहीं की जो मैं कहना चाह रही हूँ, वो तो आपने जिक्र ही नहीं किया। अब जरा गौर करें, लिखा उसने कहा तेरी खातमा पर तेरे करम की नजर हो। तब वो औरत और जाकर रोने लग पड़ी। अब कलाम कबूल करने का तरीका देखें। लोग कलाम को कबूल नहीं करते। उसका सबूत यह है कि वो बार बार उसी बात के लिए दुआ करवाएंगे। इसका मतलब अभी तक आपने उस कलाम को कबूल नहीं किया। फिर कहेंगे डॉक्टर चेंज करते हैं, ये अस्पताल नहीं से इधर चलते, दुआ करवा ली है लेकिन ईमान कोई नहीं, अमल ही नहीं है। अब इस औरत ने क्या किया? इसने कलाम सुना और उस पर क्या किया? याकूब का खत 2 बाब और उसकी 26 आयत पे लिखा है, ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है। आप अपने ईमान को अमल से बताएं कि ऐसा हो गया है, फिर आपको परेशान नहीं होना उस बात की। अब इसने क्या किया? इस औरत ने
जरा मैं उस आयत को पढ़ता हूँ 18 है। तब औरत चली गई, उसने खाना खाया और फिर उसका चेहरा उदास। और अगर आप पहले बाप की 8 आयत पढ़े, 7 आयत, ये औरत रोती थी, खाना नहीं खाती थी और उदास रहती थी। लेकिन जब इसने कलाम सुन लिया, जब कलाम सुनाया गया, उसके बाद से इसने ये तीनों काम करने बंद कर दिए। खाना शुरू कर दिया, उदासी उतर गई और रोना धोना बंद कर दिया। हम दुआ करवाने के बाद भी, दुआ करने के बाद भी हमारे अंदर उदासी रहती है। हमें यकीन ही नहीं आता कि जो कुछ कहा गया वो कुछ है। इस औरत में ये चौथी खूबी है कि ये कलाम को कबूल करे, हमने कबूल। आइए 5वीं खूबी इस औरत में देखिए। पहला सामुएल पहला बाब और उसकी आयत 22। लेकिन हन्ना ना गई, आगे क्योंकि उसने अपने खामन से कहा, जब तक लड़के का दूध छुड़ाया ना जाए मैं यही रहूंगी। आपने गौर किया, लोग मांगते बहुत है पर मिलता कोई नहीं है। वजह अब एक आयत में पढ़ता हूं, याकूब का खत, याकूब का खत बाप उसका 4 और उसकी 3 आयत में लिखा है, तुम मांगते और पाते नहीं इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते। बुरी नीयत क्या मतलब? बोला खुदा को पता मुकर जाएगी ये बोल के, इसने कोई नहीं करना जो कह रही है। खुदा आपकी नीयत से वाकिफ होता है, आपके इरादों से वाकिफ होता है कि जैसा इसका काम सीधा होगा ये साइड में हो जाएगा। खुदा ऐसे लोगों का कभी काम नहीं करता। ये औरत खुदा से वादा वफा करने वाली। आपने दुआ मांगी, खुदा मेरा काम कर दे, मैं चर्च में ये काम कर दूंगा, कर दूंगा, कोई नहीं करते, भूल जाए। खुदा ऐसे लोगों का कभी काम नहीं करता। जो मतलब परस्त, जो खुद गर्ज लोग हैं, खुदा कभी उनकी जिंदगी में काम नहीं करता। ये औरत खुदा से वफा करने वाली। इस्तिशना की किताब उसका 23 बाब और उसकी 21 आयत में लिखा है, जब तू खुदा से कोई वादा करे तो उसके पूरा करने में देर ना कर। हमें 7 साल गुजर जाते हैं, पैसे नहीं आए हैं, हालात ठीक नहीं, खुदा से जो बात की बड़ी मुश्किल, तो किसने बोला था आपको? बोले क्या अन्ना को खुदा ने कहा था? नहीं, ये इसकी अपनी कमिटमेंट थी खुदा के साथ। तो बाइबल कहती है खुदा से वादा जो किया है उसके पूरा करने में देर ना कर। शमूएल पहला बाब और उसकी 27 आयत में क्या लिखा है? मैंने इस लड़के के लिए दुआ की थी और खुदावंद ने मेरी मुराद जो मैंने उससे मांगी, इसीलिए आगे लिखा, इसीलिए मैंने भी इसे खुदावंद को दे दिया। मुकरी नहीं अपने वादे से, फिर नहीं गई कि दूसरा बच्चा हो जाए, देखती हूं फिर सोचूंगी करूं ना करूं। ऐसी कोई सोच उसके अंदर नहीं है। उसने जो खुदा से वादा किया था उसने उसको पूरा किया। और उस लड़के को लाकर क्या किया? खुदावंद को, वो लड़का उस वक्त तकरीबन कोई 5 से 7 साल का हो। अब आप गौर करें कि भांज औरत को बेटा मिले और वो हैकल में दे दे, कितना मुश्किल काम है, कितना मुश्किल काम है। खुदा की खिदमत के लिए दे दो, उसने दे दिया। क्या लिखा है आयत 28? इसलिए मैंने भी इसे खुदावंद को दे दिया, या अपनी जिंदगी भर के लिए खुदावंद को दे दिया है। तब उसने वहां खुदावंद के आगे सजदा। इसको कहते हैं मुराद, मांगनी और पानी। नियत सही रखिए अंदर से। अगर आपकी नियत सही नहीं होगी ना कभी आपको मांगने पर नहीं, हमारी नियत खराब। अब इस औरत में छठी क्या खूबी? छठी खूबी शमूएल पहला 2 बाब और उसकी जब आप पहली 10 आयत पढ़ते हैं, और हन्ना ने खुदावंद से दुआ कर कहा, मेरा दिल खुदावंद में
मगन है, मेरा सिंह खुदावन के फजल से ऊंचा। ये शुक्रगुजारी पेश कर रही है, शुक्रगुजारी पेश कर रही है खुदा की। हम शुक्रगुजारी नहीं करते खुदा की। आपका बच्चा पास हुआ, आपने शुक्रगुजारी की खुदा की। आपको अच्छा जॉब मिला, आपने शुक्रगुजारी की। आपको जिंदगी सेहत मिली, आपने शुक्रगुजारी की नहीं। खुदा कहता है ये मतलब परस्त लोग हैं, खुदा ऐसे लोगों में काम नहीं करते। थैंक्स करें उसका, थैंक्स। अब ये बेटा देने के बाद शुक्रगुजारी कर रही है, शुक्रगुजारी कर रही है खुदा के। और ज़बूर 50 और उसकी 14 में लिखा है, खुदा के लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरान। जब खुदा ने तेरे इतना बड़ा काम किया, शुक्र भी कर उसके। नहीं करते हम शुक्र। हम शुक्र करते हैं अपनी ड्रेसिंग चेंज करने में, हम शुक्रगुजारी करते हैं अपने मोबाइल चेंज करने में, शुक्रगुजारी करते हैं घर की चीजों के चेंज करने में। ये शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि पैसा मिला, लेकिन उसकी शुक्रगुजारी नहीं। खुदा कहता है ज़बूर 50 की 15 में, मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी तमजीद करे। जब आप दुआ करते हैं, खुदा आपकी सुनता है, आपकी मुराद को पूरी करता है, तो आपका फर्ज है कि आप खुदा के दिन उसकी क्या करें। लेकिन 16 पे लिखा है, लूका 17 की 16 में 10 कौड़ी खुदा यीशु मसीह के पास आते हैं। उसमें से ठीक कितने होते हैं? ठीक कितने होते हैं? जोर से बोले। 10 के 10 वापस कितने आए? 1। क्या आप शुक्रगुजारी, आपने, आपके बच्चे ने बपतिस्मा लिया, आपने क्या शुक्रगुजारी की? कोई? हमें पता ही नहीं, हमें तरीका ही नहीं आता बरकत लेने। आपका बच्चा पास हो गया, आगे चला गया, जिंदगी मिली, सेहत मिली, आपने क्या खुदा को शुक्रगुजारी? कुछ नहीं। शुक्रगुजारी की कुर्बानियां गुजरा। खुदाम यीशु मसीह ने कहा, क्या वो 9 ठीक नहीं हुए? वो क्यों नहीं वापस आए? खुदा से मांगने में अजीजों 2 बातों का ख्याल रखें। जब आप खुदा से मांगे, मत्ती के इंजीली बयान को खोले, खुदा आपकी मुराद को पूरी करेगा। आप जो कुछ मांगेंगे खुदा आपको देगा। मत्ती के इंजीली बयान उसका 9 बाब और मैं उसकी 28 आयत पढ़ता हूँ। जब वो घर में पहुंचे तो बंदे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमको इत्तेकाद है कि मैं ये कर सकूं? जब भी आप खुदा के पास आते हैं कुछ मांगने के लिए, आपका ये मान होना चाहिए कि वो ऐसा कर सकते। वो उस आदमी को नहीं मिलेगा जिसका ये ईमान नहीं कि खुदा कर सकता है, नहीं कर सकता। तो पहली बात आपको मांगने के लिए अपने दिमाग में जो बात रखनी है वो ये एतकाद रखें कि खुदा ऐसा कर सकता है। ज़बूर 17 और उसकी पहली आयत, ये 2 बातें जब भी आप कुछ मांगे खुदा से, ये 2 बातें अपने दिल में रखकर आज से इसकी प्रैक्टिस शुरू करें। देखें खुदा आपकी मुराद पूरी करेगा। ज़बूर 17 और उसकी पहली आयत, इसको भी दिल में रखें। 2 बातें दिल में रखें। पहली बात इत्तेकाद रखें खुदा ऐसा कर सकता है, और दूसरी बात, आए खुदावंद हक को सुन, मेरी फरियाद पर तवज्जो कर, मेरी दुआ पर जो बेरिया लबों से निकलती। जब भी आप दुआ करें दिखावे के बगैर, दुआ में कभी बनावट ना पैदा करें, दुआ में लफ्ज़ों को जमा ना करें, खूबसूरत दुआ को बनाने की कोशिश ना करें। आप जैसे हैं वैसे के वैसे खुदा के पास आए खुदावंद मेरी दुआ सुन जो बेरिया, यानी दिखावे के बगैर दुआ। हन्ना की दुआ में दिखावा नहीं था, ऊपर हाथ हिला कर दुआ नहीं कर रही थी, वो जोर जोर से चीख कर दुआ नहीं कर रही थी, दूसरों का अपनी तरफ मतवज्जो नहीं कर रही थी, वो दिल ही दिल में खुदा से दुआ कर रही थी। आपकी दुआ बेरिया होनी चाहिए। और दूसरी बात मैंने क्या बताई, इत्तेकाद के साथ कि खुदा यहाँ। आइए जरा गौर करें, खुदा ऐसे लोगों की कभी नहीं सुनता जिन्होंने तौबा नहीं की। पहला सैमुएल
28 बार, शमूएल पहला बाप उसका 28। खुदा ऐसे लोगों की कभी नहीं सुनता जिन्होंने तौबा नहीं की, जिन्हें गुनाहों की माफी का यकीन नहीं है। पहला शमूएल 28 बाप उसकी 5 आयत में लिखा है, और जब शाऊल ने फिलिस्तियों का लश्कर देखा तो हिरासा हुआ और उसका दिल बहुत कांपने लगा। ये उस वक्त की बात है जब फिलिस्तियों ने चारों तरफ से इस्राएलियों को घेर लिया, तो शाऊल परेशान हो गया, उसका दिल कांपने लगा। मगर उसने खुदा से दुआ की, और 6 आयत में लिखा है खुदा ने उसकी दुआ को नहीं सुना। मगर क्यों नहीं सुना, इसका भी जवाब दे दे, क्यों नहीं सुना? जोर से बोले, शाऊल की दुआ खुदा ने क्यों नहीं सुनी? पहला शमूएल 15 बाप उसकी 9 आयत में लिखा है, वो चला तो गया कि उसने अपनी मर्जी। हम इबादत पर आ जाते हैं, करते अपनी मर्जी है। दिल किया गीत गा लिया, दिल किया दुआ कर ली, दिल किया कलाम पढ़ लिया, दिल किया दिया डाला, नहीं तो उठ के चले। पहली तो बात हम या तो बच्चों से खेलते रहते हैं या मोबाइल से खेलते हैं। आ तो गया ये, लेकिन की इसने क्या? अपनी मर्जी। फिर दूसरी बात, पहला शमूएल 15 बाप और उसकी 13 आयत में, झूठ बोलने वाले लोगों की खुदा कभी नहीं सुनता। शमूएल पूछता है कैसा काम रहा? कह रहा बहुत अच्छा, मैंने खुदा के हुक्म पे अमल किया, थोड़ी देर में भेड़ बकरियां बोलने लगी। तो ये भी याद रखें, अगर आपकी जिंदगी में ये गुनाह है तो खुदा आपकी कभी नहीं सुनेगा। पहला शमूएल 15 बाप और उसकी 21 आयत में, अपनी गलती को दूसरों पे ना डालें। ये भी कई लोगों की आदत है कि वो अपनी गलतियों को दूसरों पे डालते हैं। लेकिन बड़ी मजे की बात है, यूना ने क्या कहा? जोर से बोले, यूना ने क्या बोला? ये तुम पर बड़ा तूफान मेरी वजह से। अपनी गलतियों को मानना सीखें। अगर आपको बेटा नहीं मिल रहा तो हो सकता है आपकी गलती हो। औरत पर राशन लेकर चढ़े रहते हैं, अपनी भी गलतियों को देखें, आप भी ठीक है या नहीं ठीक। तो हमें गौर करने की जरूरत है। दूसरों पर आप कीचड़ मत उछालें, अपनी गलतियों को तलाश करें। ये शाऊल की कमजोरियां थी जिसकी वजह से खुदा ने उसकी बात नहीं सुनी। फिर 5वीं बात, पहला शमूएल 15 बाप उसकी 17 आयत में लिखा है, वो खुदा की मेहरबानी को हकीर जानता है। खुदा ने इसको इस्राएल का बादशाह बनाया, लेकिन उसने की क्या? अपनी। इसलिए यूहन्ना 15 बाप और उसकी 16 आयत में लिखा है, खुदा इंसान पर रहम करता है। खुदा इंसान पर रहम करता है ताकि वो खुदा को जान जाए, उसके पाक रास्ते में चले और मौत से निकल कर किस में आ जाए? जिंदगी में आ जाए। आखिरी वाला पढ़े, मुकाशवा का खत। मुकाशवा यीशु मसीह का बाप उसका 2 और उसकी आयत उसकी 5। अगर आपके पास बाइबल है तो मेहरबानी से खोल लें। बस ख्याल कर ये आयत को अगर हम सारे मिलके पढ़ लें तो जरा अच्छा लगेगा। मुकाशवा 2 बाप और उसकी 5 आयत में जरा मेरे साथ सारे मिलकर पढ़ेंगे। बस ख्याल कर, बोले जरा कि तू कहां से गिरा, कि तू कहां से गिरा है। आप जरा गौर करें क्या लिखा है, जरा दोबारा पढ़ना। बस ख्याल कर कि तू कहां से गिरा और तौबा करके पहले की तरह काम कर, और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिराग दान को उसकी जगह से हटा दो। ख्याल करना चाहिए। गलतियों को ढूंढने, किन गलतियों की वजह से आप आज तक बेटा नहीं हासिल कर सकते, बेटी नहीं हासिल कर सकते। मैंने एक दफा एक औरत को ये बोलते सुना, मेरे सामने की बात है। मुझे कहने लगी कि मेरे घर में कोई जानवर ही पैदा हो जाए, मैं ये तो कह सकूँ मैंने किसी को देना। औरत की बड़ी ख्वाहिश है, यहूदी औरतों की अगर औलाद ना हो तो उसको बड़ी गलत औरत समझती। अल्लाह इसलिए इस बात के पीछे पड़ गई थी कि मैंने खुदा से लेकर रहना। आप भी इतनी गलत मत बने और खुदा से ले मांगे उससे। लेकिन इसके लिए ईसाया 30 बाप उसकी 15 में लिखा है, वापिस आने और खामोश बैठने में तुम्हारी क्या है? आइए दुआ करें और कुछ देर इस कलाम पर गौर करें। अगर आपको समझ आ गई है, आपने अगर खुदा से बेटा पाना है तो फिर आप हन्ना की इस जिंदगी पे गौर करें। हन्ना ने किस तरह ये काम किया।
آپ کو ہنا کی باتیں سمجھ آئی ہوں گی کہ اس عورت نے کس طرح اپنی زندگی کو خدا کے سپرد کیا، خدا نے کس طرح اسے برکت دی۔ کچھ پانے کے لیے کھونے کی ضرورت۔ ہنا اکیلی نہیں جاتی تھی، اس کے ساتھ اس کا شوہر بھی عبادت پر ہوتا تھا۔ پھر دوسری بات، وہ دعا بہت تھی، وہ رسمی دعا نہیں کرتی تھی، وہ دل سے دعا کرتی، وہ اپنے بدن کی بڑی حفاظت کرتی ہے، پاکیزگی کو بہت ترجیح دیتی ہے۔ وہ وعدے پر قائم رہنے والی عورت ہے، اس نے جو بولا وہ کر کے دکھایا۔ وہ شکر گزاری کرنے والی ہے، تاکہ جو شکر گزاری کرتی ہے۔ سو اگر آپ کو آج تک اپنے اس مقصد میں آپ کامیاب نہیں ہوئے ہیں تو پھر آپ کو آج ہنا کے اس طریقے کو اپنانا ہے۔ کس طرح اس نے خدا سے مانگا اور خدا نے اس کو دیا، اور اس نے پھر خدا کو جو وعدہ کیا تھا اس کے مطابق ملے۔ آئیے اب دعا کریں، شکر گزاری کریں۔